So hello everyone, I welcome you all back to my YouTube channel Banking Nova. So today we are going to give another mock test of SBI Clerk. I hope things are audible and the screen is visible. Yeah, exactly. What is the problem, guys? There is some issue with the. Okay, we'll do that. But before that, in the last three mock tests that I have given, I scored 71 marks. This is not very good score. I think it is okay. These two scores are definitely not very good. I've scored 60 correct, 9 wrong, 56 correct, 7 wrong. This is a okay score. Well, the target score should be above 70. I'm scoring in the range of 55 to 670, in the range of 55 to 70. Let's see what happens in this test. Okay, let's start the test. Read the sentence to find out whether there is any grammatical mistake or error. New Delhi is not only the capital of India, but is also one of the most vibrant cities. But it is also one of the most vibrant cities. She has, at a time when India was struggling for her freedom, for her freedom, for its freedom. Inequality resembles the mythological serpent Hydra. Inequality resembles the mythological serpent Hydra in Greek mythology. As the state attempts to deal with one aspect of inequality, much new aspects keep coming. Many new aspects emerging. Yes. The wind blew. ये क्या है? Question है three ways correct word in which the word has been used similar. Okay. The wind blew through her hair as she stood on the deck of the ship. Okay. My biggest joy is winding on nuts. Winding her nuts पे while I watch my favorite show. Okay. Please wind that old fashioned alarm. Wind that. Please wind that old fashioned. एक winding होता है वो करना ठीक है. Please wind that old fashioned alarm. मुझे तो और लगा. Sharp. She has a sharply mind as she quickly grasps complex concepts. She has a sharply mind. She has a sharp mind तो सुना है sharply mind क्या है? So you can need to correct used the highlighted word. Okay. She has sharply mind नहीं. The ship's knife was sharp and efficient in the kitchen. The car came to a sharp halt to avoid the collision. So 2 and 3 is the correct answer. I think so. Yes. This is a reading comprehension. Yes, right. We'll do it last. The police was
able to seize the stolen artwork from the hideout, ensuring its safe return to the museum. म्यूजियम की स्पेलिंग ये तो नहीं होती है, यही होती है क्या? मुझे क्या रॉन्गली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट है, तो डी मुझे लग रहा है, डी तो डेफिनेटली आएगा। सी, सीज ठीक है, स्टोलन ठीक है, हाइड आउट भी ठीक लग रहा है। सीज को कैसे लिखते हैं, मतलब सीज लिखते हैं कैसे लिखते हैं? हाइड आउट, सी डी हो सकता, हाइड आउट, आर्टवर्क फ्रॉम द हाइड आउट, स्टोलन, सीज, ए और डी लग रहा है मुझे। The police was able to seize the hideout. अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। The chef decided to make, ये गलत है, make a cake and put it in the oven to bake, A or D. Multiple marketing studies are openly testing the new ways to alter, C गलत है, and driving new ways to alter and drive purchasing behavior through sleep and dream hacking. Multiple marketing studies are openly testing new ways to alter and drive purchasing behavior through sleep and dream hacking. Okay. India crossed the dash milestone of India of launching 300 foreign satellite planets. India crossed a milestone of UK law dictates that by 2040 carbon emissions will be virtually halted and any remaining emissions will have to be compensated, will be, okay, this is a para jungle. Okay, we'll do it at last. I have a strong desire to see the differences and similarities in how people live everywhere in the world. It has been very clear that excess inflammation act, affects the circuits in the brain. Commonwealth Games dash telecast right are rumored to be still unsold. Commonwealth Games exclusive telecasting rights. मोबाइल फोन से रिवॉल्यूशनलाइज्ड क्या कर दिया है, वो कम्युनिकेशन सेक्टर हो सकता है। ए और ई का पेयर बनेगा यहाँ। बी डी का बन रहा है, अमेजन रेन फॉरेस्ट कवरिंग अराउंड 2.1 million square miles is the largest tropical rainforest. The old bookstore had a musty smell that evoked nostalgia. The nutritionist recommended balance and exploring the connection between diet and well-being. The nutritionist recommend तो बी और डी का कनेक्शन है कहीं, यहाँ पे है। आफ्टर स्टडिंग मरीन बायोलॉजी फॉर ईयर, सी और ई का हो जाएगा, ये ठीक है। हाँ, कमिंग बैक टू द पैराजम्बल, ये क्या कह रहा है कि इट रेंडर्ड इंडिया द 78th मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2018. द करप्शन perception index ranks 180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption among expert and business people. करप्शन परसेप्शन सीपीआई रैंक जो है 180 कंट्रीज की और टेरिटरीज की परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन में। Okay. Further, CPI also stated that efforts to curb corruption in the Asia Pacific are having little effect. Reason for such little effect is little respect to the rule of law. Also, there are also often unclear and unfair regulatory tax system. Okay. तो सबसे पहले तो बी आ जाएगा इसमें, क्योंकि एक दो तीन चार, पहले तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट बी हो सकता है। करप्शन रैंक किया है 180 कंट्रीज और टेरिटरीज को उनके परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन में अमंग एक्सपर्ट्स और बिजनेस पीपल। ओके, इट रेंडर्ड इंडिया द 78th मोस्ट करप्टेड कंट्री, उसके बाद ए आ जाए। ओके, फर्दर द एसीआई सीपीआई आल्सो स्टेटेड दैट एफर्ट्स नहीं, इसके रीजन फॉर सच लिटिल आल्सो देयर आर ऑफन अनक्लियर एंड अनफेयर रेगुलेटरी टैक्सेशन सिस्टम। उसके बाद सीपीआई ने क्या स्टेट किया है कि जो एफर्ट्स हैं कर्ब करने के करप्शन को एशिया पैसिफिक में,
एक से एक ये नहीं होता है क्या, करप्शन जो है 180 कंट्रीज और टेरिटरीज में किया गया है। परceived लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन, सीपीआई आल्सो स्टेटेड द एफर्ट टू कर्ब करप्शन इन गवर्नमेंट। फर्दर बाद में आएगा, इसने ये बात कही है 78 मोस्ट करप्ट कंट्री है। उसके बाद फर्दर सीपीआई ने स्टेट किया है कि एफर्ट जो है करप्शन को कम करने के वो लिटिल है इसमें। उसके बाद रीजन फॉर सच लिटिल इस ये रीजन ये है कि रूल ऑफ लॉ और कॉम्पिटिंग गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसीज नहीं है, और क्लियर और अनफेयर रेगुलेटरी टैक्सेशन सिस्टम है। तो लास्ट में डी और ये होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी बी, सेकंड विल बी ए, थर्ड सेंटेंस विल बी सी डी ई। सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, और एट लास्ट में ये विल बी ई। अब वापस चलते हैं हम अपने इस पे। वेयर माइट रेक्स हैव लर्नड टू मेंड शूज, रेक्स ने शूज मेंड करना कहाँ से सीखा? देयर वर टीयर्स इन रेक्स मदर्स आईज बिकॉज, मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? हाउ डिड रेक्स मेंड द सोल्जर्स शू, किस तरह से करता था? विच ऑफ द फॉलोइंग वर और कुड हैव बीन द एफर्ट्स ऑफ रेक्स एक्ट ऑफ मेंडिंग द शू? व्हाट, व्हाई कुडंट रेक्स गो टू द वॉर विद हिज फादर? उसके बाद ग्रेस्प का मतलब क्या होता है? ग्रेस्प मेंशन्ड इन बोल्ड वर्ड, कौन सा रिप्लेस कर सकता है? ओके, स्पिरिट मेंशन बोल्ड वर्ड को कौन रिप्लेस कर सकता है? और ट्रबलसम मेंशन इन द बोल्ड वर्ड का मीनिंग, ट्रबलसम है तो इसका अपोजिट मीनिंग अनसेटलिंग, डिस्ट्रेसिंग, डिसहार्टनिंग। फ्लरिशिंग तो नहीं होगा ट्रबलसम में, फ्लरिश कैसे करेगा वो इसमें? ओके, पैराग्राफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि काफी तीन पैराग्राफ का वो है। आउटसाइड द विलेज कोबलर्स शॉप, विलेज की कोबलर शॉप के बाहर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैज अटैक हैज हैड स्टैक्ड देयर गन्स। Okay, the cobbler himself is musket in his hand and a knapsack slung over his shoulder, stood in the doorway. Acha. There were tears in his wife's eyes, though she tried to smile bravely as she stroked the thick dark hair of the boy by her side. Okay. Goodbye, father. Why can't I go to the war too? His father looked at the pale face and hump on the bar in the back, which kept Rex from playing like other boys. Okay. We must have soldiers at home as well as on the battlefield. Just do your best, Rex. Then the father took his place in the line and marched off to the front. The pipes and drums kept up the spirits of the brave men as well as of the brave women who were left behind. Some mothers later, a soldier hurried into the house. Some months later, a soldier hurried into the house. Okay. Rex noticed that he limped. Rex noticed that he limped and that the sole of his shoe was flapping. Is there any one here who can mend my shoe? Shoes, who mend my shoes? Who can mend my shoe? There's a bad nail that I can't reach in one, and unless the other is fixed, I shall soon be barefoot. I think I can, answered Rex. Hurry, I must be at the camp by midnight, exclaimed the soldier. Rex, taking the hammer and all, okay, went steadily at work. Troublesome nail was soon hammered down and the surface moved to mend the flapping sole. However, it was a longer and more difficult task, but the boys all pierced the leather as swift and true as if it had been in the hands of his father. Okay, oils pierced the leather as swift and true as if it had been. Okay, the vexed ends of the threads quickly followed, and a strong tug drew in them tight. Here are you, sir, Eddie said at last. My father would have mended them better, but I have done my best. Soldier drew the shoes on. Well, he said, take this card. When the bar is over, come to me and I'll see what can do for you. Rex looked on the card and grasped it. It was the name of one of the officers in his father's company. Why are you my father's officer? He exclaimed Rex. When he comes home, tell him this. You have helped me to carry messages which may save your father's life and help to win our next battle. Then, tossing a coin into the boy's lap, he hurried and was gone. Some days later, Rex heard the news of the great victory. Only think, mother. He exclaimed, we won. I wonder if I really did have something to do with the battle. Shoeless men can't carry messages or fight their best for us, answered his mother, smiling at the okay. Crooked backs that do their best can be okay. How might Rex have learned to mend shoes? Is from the soldier, from his father. There were tears in Rex's mother's eyes because her son was physically, she was unhappy with the family's financial condition. If she had to give up her hobby, her husband was going to the battle. What is the moral of this? We should work hard and never give up. We should not let other people opinion of ourselves bogus. We should not focus on our flaws and do utmost. We should do careful thinking. We should respect and appreciate it.
How did Rux mend the shoes? He tucked the threads tight. किस तरह से उसने mend किया था shoes को? Okay, to mend the flapping shoe, the boy all pierced the leather as swift as true as it had been in the hands of his father. The vexed ends of the threads quickly followed and tugged, drew them tight. He tugged the threads tight. He hammered the nail in the shoe to smoothen its surface. He pierced the leather with his awl. तो थर्ड तो होने वाला ये और ये कट गया ये कट गया तो या तो ए सी डी में कोई होगा. इसने क्या किया? टू मेंड द फ्लैपिंग सोल होवेवर वाज अ लॉन्ग एंड नॉट ओके. इसने क्या किया? There's a boy, there is a bad nail I can't reach, and I shall soon barefoot. I think I am. Okay, hurry, I am. Must be camp at. Okay, Rex, taking up the hammer and all, went steadily. The troublesome nail was hammered down, and the surface smooth. So he hammered the nail in the shoe to smoothen the surface. Two and three, तो definitely. He tucked the threads tight. तो उसने threads को tight tuck किया था. Troublesome nail was soon hammered down and okay too. Made the flapping sole, however, was a longer model, but the boys all pierced the leather as swift and true as it had been in the hands of his father. The vexed ends of the threads quickly followed, and a strong tug drew them tight. क्या threads को tight किया? He tugged that fall ही होना चाहिए फिर तो. Which of the following were or could have been the effects of Rex's act of mending the shoe? Rex's father sacrificed his life. The soldier was able to lead his troop to victory. The soldier couldn't reach his camp on time. ओनली टू हो सकता है कि क्या इफेक्ट हो सकते थे रेक्स के एक्ट ऑफ मेंडिंग द शू. सोल्जर टाइम पे टू लीड हिज ट्रूप टू विक्ट्री. द सोल्जर्स कुडंट रीच. नहीं नहीं ये हो सकता है. Why couldn't Rex go on the war with his father? Rex was extremely lazy. Father wanted him to focus. नहीं, Rex's mother was scared. Rex's father wanted him to take his mother. Rex was physically disabled. Which of the following could replace the word grasped? Rex looked at the card and grasped it. And seize नहीं हो सकता, believe नहीं हो सकता, सरप्राइज नहीं हो सकता, लुक में वेल्ड हो सकते हैं. Which can replace word spirits? The pipes and drums kept up the spirits, kept up the energy of the brave men. Coming back to the question number 16, the police was able to seize. अभी हमने इस रीडिंग कॉम्पिटिशन में एक वर्ड पढ़ा था, सीज, राइट? कहाँ था वो वर्ड? किसी पैराग्राफ में था. SEIZED. तो मतलब सीज की स्पेलिंग SEIZED होती है और यहाँ पे SIEZE है, तो मतलब ए डेफिनेटली नहीं होगा. ए तो डेफिनेटली नहीं होगा. स्टोलन, हाइड आउट, ठीक है. म्यूजियम की स्पेलिंग ये नहीं होती यार. म्यूजियम की स्पेलिंग ये तो डेफिनेटली नहीं होती है. तो बोथ ए एंड डी मुझे लगता है. ये सब हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 पे. न्यू दिल्ली इज नॉट ओनली द कैपिटल ऑफ इंडिया बट इज ऑल्सो बट न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं है बट ऑल्सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट. अब इट इज ऑल्सो आएगा या बट ऑल्सो इट इज नॉट ओनली. नॉट दिल्ली, New Delhi is not only the capital of India, but it is also one of the most vibrant cities. मुझे कोई error नहीं लग रहा है इसमें. Inequality resembles a mythological serpent hydra in Greek mythology as the state attempts to deal with one of the aspects of equality. Many new aspects keep coming up. Much new तो नहीं होगा definitely. The wind, ये doubt है इसमें. The wind blew through her hair. Okay, ये तो ठीक है. Biggest joy is winding on nuts. जो nuts हैं उन पर winding करते हैं ना. जैसे कोई nut है, कोई हील है, उस पर winding करते हैं. While I watch my favorite show. ये biggest joy हो सकता है. Maybe. Please wind that old fashioned, ये होता है ना wind up करना. Please wind that old fashioned alarm clock kept over the table. इसमें डाउट है मुझे, इसको अनमार्क कर दे. वैसे तो all 1 2 3 होना चाहिए. So that's it from my side. It is 5 questions has been done. 3 minutes are left. Let's move to the और तो यही कर सकते हैं next section.
दीना पेड रेंट एवरी 24% ऑफ हिज, ये सब क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये वन लाइनर है, कर सकते हैं। स्टूडेंट कैलकुलेटेड प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, they all questions can be done very easily। 15 15 225 15 15 255 3375 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3206। 3375 का आएंगे, 6 में 5 जाएगा, 1 9 में 7 जाएगा 2। अरे यार 3 3 7 5 3 2 0 6, 15 में 6 गया, 9 बच गया, 6 यहाँ बच गया, 169। 13 विल बी द करेक्ट आंसर। एक्स माइनस ये कितना है, 25 और 205। 25 और 5 30, 230। 230 और 100 330। एक्स माइनस ये 205 है, ये 25 है। 25 और ये कितना, 25, अच्छा ये 5 कम हो जाएगा ना। तो 25 205 में उधर भेजो उसको। 75 तो ये हो जाएगा, 75 और 205, 210 70 280 का पता करेक्ट आंसर। ये कितना हो जाएगा, ये 3.33 है, ये 14 है, मतलब कितना 15 5 में 2 जाएगा 3 3x इक्वल टू 60% विल बी 3/5 4 20 माइनस एस दिया 83 140 20। इसमें दोबारा भी कौन सा लगेगी, तब फिर 24 से 25 उससे 12 में 12 के 14 में 8 के 6 168 3 55 का तो चल रहा था 56 को भी तो करेक्ट आंसर। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यार थोड़ी सी। 18 दिया 54 प्लस एक्स बराबर 3540 3600, मतलब 660 आ जाएगा ये, प्लस 25% 1/4 6 आ जाएगा। 66 में 54 जाएगा तो 54 6 6 12। ये आपके पास कितना 180 इंटू ये है आपके पास 9, नहीं 8 है, तो 8 चौको 32 और 4 बच गया, 8 बना 40 माइनस 27%। 27/27 गुणे 2 बराबर है, सॉल्व कर लेते हैं। 180 गुणे 45, क्या कर सकता हूँ मैं इसका, 18 का 0 का 18 पर 72 80 81 54 बराबर एक्स। 6 बच गए, 4 बच गए, 40 से किसी की यूनिट डिजिट में आ रहा है एग्जैक्टली 70% ऑफ, ये कितना हो जाएगा 7/10 ऑफ 1 1 2 0 माइनस 20% 1/5 ऑफ 800। एक जीरो से 7 दूनी 14 4 से 7 3 7 8 7 3 7 5 160 4 में 8 620 16.66% होता है 1/6, तो 6 3 18 1/6 सेकंड 6 2 6 चौको 24 6 चौको 24 माइनस 7 343, ये हो जाएगा 49 एक्स प्लस 321। ये कितना हो जाएगा 4 1 5 4 2 6 3 1 4 में 49 माइनस करोगे, 3 में से हो जाएगा 6 5 में 4 जाएगा 1 416। सर कुछ ऑप्शन में है नहीं, गड़बड़ हो गया। ये 1/6 है, तो 6 एकन 6 2 बच गया, 6 चौके 24 6 चौके 24 माइनस ये 7 है, तो 7 ये 343 है, तो 7 चौको 28 6 सामने 63 बराबर एक्स प्लस 321 है। 14 में से हो जाएगा 5 जाएगा, 15 में 4 जाएगा 11, अच्छा 321 का माइनस करना है, तो 11 में 5 जाएगा 6, 1 में 1 गया 0 206। ये होगा सही करेक्ट आंसर। ये कितना है 85% ऑफ 1 to 100, 85% मतलब वही कर लो 85/100 ऑफ 200 प्लस 1/5 ऑफ 90 बराबर एक्स प्लस 10% ऑफ 250 25 5 80 170 15
163। 50% ऑफ ये 18 का आधा 9, 3 आंसर आएगा इसका। 370 प्लस 84.89% ऑफ 400, 370 प्लस 85%, 85 इंटू 4 माइनस एक्स बटा दो, 7%, 7 इंटू 1 5, 15 105 एक्स, और 4 पंजे 20, 25 4 8 32 2 34 प्लस 370, 300 300 600, 660, 710, 605। ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर बनाया है। कोई टीआई नहीं लग रही है मुझे, एक टीआई है नीचे नहीं होगी टीआई तो हम पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 130 पे 13 और 10 और 11 दूनी 22, -13 इन दोनों से छोटा है, 10 इन दोनों से, 10 इससे तो छोटा है, इससे बड़ा है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 16 16 256 होता है, 18 5 9 10 निम्न 90 होते हैं, 16 इन दोनों से बड़ा है, 16 इन दोनों से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वही आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये डी आई आ गई है, 25 26 27 है, 25 से लेकर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मैथ में फिजिक्स में केमिस्ट्री बायो में नंबर दे रखे हैं, और कहाँ है क्या, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में दो स्टूडेंट ए और बी के नंबर दे रखे हैं। ए के इसमें 90 हैं। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन फिजिक्स व्हिच इज 120% ऑफ व्हाट ही गॉट इन मैथ्स, मैथ्स में 90 आए हैं इसके, तो फिजिक्स में इसका 120% आया है। क्या क्वेश्चन है यार, चूंकि 12 निम्न 1 सवाल। ए गॉट 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ए के 90 हैं, वो भी 60%, 3/5 है, तो ये कितने दे देंगे, 5 गुणे 5/3, 30 तीन है, 90 गुणे 5/3, 30 पंचे 150 नंबर। व्हाट, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन मैथमेटिक्स, 75% ऑफ 3/4, इसका करोगे 450 होते, 4 4 1 4 4 1 4, 14 नहीं 8, अंडर 12.5 आ जाएगा। What is the ratio between the marks obtained by A chemistry, 75 is to mark obtained by him in biology, 60, 1/75, 15/60, 5:4 is the correct answer. What will the marks obtained by B in biology if the average of marks obtained by A and B in biology is 66? A और B का 66 है एवरेज, तो ये 6 कम है उससे, 72 नंबर होने चाहिए, ये 6 कम है तो 72 होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ए गॉट इन केमिस्ट्री 75, मैक्सिमम मार्क्स 200, 25 25 25 3 75, 25 8 200, 1/8 12.5, 36.37.5। ओके, we'll do it definitely। नेगेटिव नेगेटिव फ्री एंड पर नेगेटिव है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश आ जाएगा इसका तो। उसके बाद ये है एक क्वेश्चन की, स्पिरिट सॉल्यूशन 90% स्पिरिट है, 10 men 15 boys can do a piece of work in, तो 10 men plus 15 boys can do a piece of work in 12 days। How many days 12 men plus 18 boys can do the work together to complete twice the work? अच्छा, तो इसका अगर मैं दुगना कर देता हूँ, इसका अगर मैं दुगना कर देता हूँ तो कितने दिन लग जाएंगे, ये 12 दिन में करते हैं काम, 10 मैन प्लस 15 बॉयज। ओके, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 मैन की एफिशिएंसी प्लस 15 बॉयज की एफिशिएंसी इंटू 12, ये टोटल वर्क होगा, ये आपका टोटल वर्क होगा। इसका ट्वाइस काम करना है 12 मैन प्लस 18 बॉयज को।
कितने दिन में करेंगे, राइट? यही तो पूछा है। ओके। मैन और बॉय की एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। 10 men और 15 boys, अच्छा 10 men और 15 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। अच्छा, या तो 10 men, या फिर तो 10 men जितने दिन में करेंगे उतने 15 boys भी, या 15 boys, मतलब 10 men इज इक्वल टू 15 boys हैं। तो मैन अपॉन बॉय कितना हो जाएगा? 15/10, 5×15, 5×10। मैन की एफिशिएंसी 3, बॉय की एफिशिएंसी 2। कह रहा है कि हाउ मेनी डेज में 12 men, अब टोटल वर्क निकालो तो 10 men की एफिशिएंसी कितनी है? 3 गुणे टोटल वर्क 12 दिन में करता है, इसका दुगना वर्क 12 men और 18 बॉयज, तो 12 men मिलकर 36 काम, 36 और 18 बॉयज 18, 12 men 18 बॉयज, 12 men, 12×3 = 36, 18×3 = 36, 72। कितने दिन में करेंगे? 72 कर लो। 12×6 = 72, 3×2 = 6, 2 से 2 कट गया, 10 days लग जाएगा इसको। Luna paid rent every year, 24% of his annual salary, his monthly salary is 48,000, what the annual expenditure on rent? 48,000 का 24% निकालना है। 24 × 480 हो जाएगा। 24, 24 से मानवी कौन सी लगी? 19, 24 96, 400, 805, 115, 11,520। ऑप्शन में है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। 24% अपनी मंथली सैलरी का इसमें दे दी, 480 × 24 ही होगा ये। तो एक काम करूँ, 480 × 24, 0 4 8 32 की 2 से लगे 6, 4 4 16 3 19, 2 0 2 8 16 की 6 से लगी तो 4 8 1 9, 2 1 9 10 11 520 ही आ रहा है। क्या कह रहा है? एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट 24% ऑफ एनुअल सैलरी, इफ इज मंथली सैलरी, अच्छा एनुअल सैलरी का इतना लेती है, तो एनुअल सैलरी का अगर इतना लेती है 24% ऑफ एनुअल सैलरी, तो एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी इसकी? 12 मल्टीप्लाई बाय इतना, इसका 24%, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12×24 की 4, 5 से लगी 2, 12×5 = 60, 2 62 की 2 से लगी 6, 12 1 12 6 18 11 की लगी 1, 12 1 12 1 13, 13 8 2 4। फॉर्म टर्म द सीरीज 64 है, 88 है, 152 है, 162 है, 64, 8 में 4 गया 4, 8 में 6 गया 2, 12 में 8 गया 4, 14 में 8 गया 6, 12 में 2 में 2 गया 0, 16 में 15 10, 6 में 2 गया 4, 17 में 14, 176 और 4 80, 20 2 22 26 ही आएगा। कुछ गड़बड़ है? 88 और ये 64 है, ये 10 14 26। नहीं समझ में आ रहा है तो 4 का अंतर है, 14 6, 12 का अंतर है यहाँ, 56 का अंतर है यहाँ, 40 का अंतर है। ऑनलाइन बाद में करेंगे, 7 8 कर लेते हैं। स्टूडेंट कैलकुलेट प्रॉफिट 20% ऑन एसपी इंस्टेड ऑफ सीपी। कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन एसपी इंस्टेड ऑफ सीपी। अच्छा, सीपी पे प्रॉफिट जाने 20% एसपी पे कैलकुलेट कर दिया, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताएं। मान लो सीपी कुछ एक्स रहा होगा और एसपी 20% का मतलब 1/5, उसने एसपी पे कैलकुलेट कर लिया, मतलब एसपी को 5x कर दिया, इसको 4x, ई 5x को इसको सीपी मान लिया, इसको एसपी मान लिया। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? मतलब 20%, मतलब 20% सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर लिया, मतलब 100 रुपए ये रहा होगा तो 120 ये कर लिया, जबकि उसको इस पे कैलकुलेट करना है। सर्कल डायमीटर 84 is open and bent again in the अभी 10 क्वेश्चन बचे हैं, पूरे 10 के 10 कर सकते हैं। सर्कल, एक वायर उसको बेंड किया 100 पर, सर्कल डायमीटर 84 इज ओपन एंड बेंट अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ टू साइड 6:5, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
तो बेंट किया गया था सर्कल, इसका डायमीटर कितना था, 84 था। इसका डायमीटर 84 था, मतलब एरिया कितना हो जाएगा, वो पेरीमीटर 2 पाई इंटू आर, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 84/2, 12, 44 × 6 आ गया। इसको डिवाइड कर दो, 11 से 4 × 24, लेंथ कितनी आ जाएगी, 24 × 120, 24 और 120। एरिया 12 × 4 = 48 की 8 की 4, 12 × 4 = 4, 52 की 2 की 5, 12 3 12 5 17। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। डायमीटर 84 था ना, तो पेरीमीटर कितना है, 84/2 कर दिया हमने। 2 पाई आर होता है पेरीमीटर, 2 × 22/7 इंटू 84, 7, 12, 2 × 6 = 12, 6, 22 × 44 × 6 पेरीमीटर है। ये पेरीमीटर है, ये किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर, सॉरी, L2L+B। 11, ओके, 22, 12, तो 12×6 = 72, 12×5 = 60, 6 दूनी बोला कि 2 इसलिए 6 × 7 = 42, 1 × 43। Average of two prime number AB and even number is C. A bag contains 7 green ball, 5 red ball. Another bag contains 9 green, 7 red ball. One bag is chosen at random. And the ball is drawn from it. The ball is red. What is already it is from the second bag. P started business investing arts of Q joined and P by investing art respectively. P ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 81 रुपए इन्वेस्ट करके। P है, Q है, अच्छा P ने 81 रुपए इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में। Q joined and 3 months by investing 8,000 at the end of year. 12 महीने ये रहा, 9 महीने ये रहा। Share of the total profit P was 2592, ये 2592 था। और the share of Q out of the total profit, इसका 2592 था, ठीक है। 3 कुछ और 12, 2 0 से 2 0 चले गए। 9 से काटो, क्या 3 से काटो, 27 दिया 81, 3 चला गया। 4 से काटो, 4 × 4, 4 दूनी 20, 27:20। 27 की वैल्यू उतनी, 27 की वैल्यू तो 2592/27, मतलब 11.16 पेपर है। 3 × 27, 3 × 24, 1 × 18, 1 × 14 12, 9 × 81, 9 × 50 पे, 1 की वैल्यू आ गई 96, 20 की वैल्यू 96 दूनी 920। Sum of इतना at a certain rate of interest for 8 years at simple interest is amount to इतना, what is the rate of interest, 17,640 at a certain rate of interest for 8 years simple input इतनी। अच्छा, 8 साल के लिए इतना अमाउंट हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 38,808 में 17,640 जमा दिए। 21,168 इंटरेस्ट रहा है 8 साल में। कितना इंटरेस्ट रेट है, 16। ये तो 8 साल में रहा ना इंटरेस्ट रेट, अभी वही बताएंगे। 8 16, 8 6 48 3, 8 32 4, 8 26.46%। ये आपके पास प्रिंसिपल था, ये आपके पास टोटल अमाउंट, अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उसको डिवाइड बाई 8 कर दूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। 26% आ रहा है ये तो। चार दो दो पाँच छः, 4 2 2 5 6, 4 डिवाइड बाई 2.5 करूंगा इंटू 1.5, 2 2 में 4, 4 का डिवाइड बाई क्या कर दिया 0.5, क्या मल्टीप्लाई 0.5, तो क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 1.5, 3/2 करूंगा तो नहीं, हो गया डन।
Let me check if the recording is going pretty well. Yes, it is. ये अब रीजनिंग रहेगा और उसको से वो आपको यहीं चला रहेगा। अरे कहाँ चला गया मेरे के बाद। 9 member of 3 generation family, M is the sum of V, इसको बाद में करेंगे। Vikas walks 8 kilometer towards the south direction and then turns and 13 kilometer takes north। अच्छा एक क्वेश्चन के लिए कर लेगा। 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 8 किलोमीटर गया साउथ डायरेक्शन, देन टर्न्स इज राइट 13 किलोमीटर, देन इट टेक्स 2 consecutive लेफ्ट, एक लेफ्ट लिया यहाँ पहुंच गया, फिर एक लेफ्ट लिया। अब 6 and 10, ये 6 किलोमीटर का, ये 10 किलोमीटर का। इन विच डायरेक्शन विकास इज फेसिंग नाउ, ईस्ट डायरेक्शन में है। 6 consecutive person born in the different years 1990 से स्टार्ट होता है, ईच पर्सन वाज बोर्न इन अ डिफरेंट सिटी वाज इतना। अच्छा ओके कर लेंगे इसको। सर्टेन कोड लैंग्वेज में इतना ओके। 8 different box kept are one, each box has a different pair of chocolate, okay। 8 persons written in linear row facing इतना 1 person, okay। एक ही क्वेश्चन है क्या? एक ही क्वेश्चन दो आप। if the word personal, if second third seventh how many meaningful words second, पहले तो e, third r, seventh और l, रियल r e a l, एक तो रियल बन जाए और रियल बन रहा है। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म, एक तो रियल बन रहा है और भी बन रहा है। कैटेगरी ईच ऑफ द वर्ड, ओके। इसको करते हैं एक बार। कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग सिक्स राइट ऑफ 11 फ्रॉम 11 लेफ्ट के, 6 17 फ्रॉम लेफ्ट। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17। If all symbols are dropped from the string, which element is fourth to the left of seventh element from right? Right से seventh के fourth left, 11th from left, 11th from right। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1। How many digits are there which is immediately preceded by alphabet? Alphabet से पहले digit, alphabet से पहले क्या आना चाहिए? Digit आना चाहिए। How many digits are there which is immediately preceded by an alphabet? Digits कितने ऐसे हैं जिनके पहले alphabet आना चाहिए? Digits से पहले alphabet and immediately succeeded by symbol, alphabet digit symbol। ऐसा करते हैं, symbol digit alphabet बनते हैं। symbol digit alphabet नहीं, symbol digit alphabet नहीं, symbol digit alphabet एक मिल गया, symbol digit alphabet एक और मिल गया, symbol digit alphabet एक और मिल गया। symbol digit alphabet नहीं है, symbol digit alphabet नहीं है, symbol digit alphabet नहीं है, नहीं तो कितने हो गए? 3। Which of the following digit is immediately preceded by symbol? Digit immediately, which of the digit is immediately preceded by a symbol? Digit immediately preceded by a symbol and immediately succeeded by alphabet. Symbol digit alphabet, which appears after T in the English alphabetical series। अच्छा alphabet T के बाद which appears after T, U V W X Y Z। U V W X Y Z में तो ये था। हाँ शुरू करेंगे सिंबल से, शुरू करेंगे सिंबल डिजिट ढूंढेंगे। सिंबल के बाद डिजिट है लेकिन उसके बाद ये वाला अल्फाबेट नहीं चलेगा। सिंबल के बाद डिजिट है, ये अल्फाबेट नहीं चलेगा। सिंबल के बाद डिजिट है ही नहीं, सिंबल के बाद डिजिट नहीं है। सिंबल के बाद एक डिजिट है, उसके बाद आई है, नहीं चलेगा। सिंबल के बाद डिजिट नहीं है, सिंबल के बाद डिजिट है, एक ही हो जाएगा। तो एक ऑप्शन में तो नजर आ रहा है। 3 and 9 क्या पूछ रहा था ये? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, ये था ना। Which of the following digit is immediately preceded by a symbol and immediately 9 1 लग रहा है मुझे।
हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन आइलैंड क्यू, ये किया जा सकता है, फिर ये भी किया जा सकता है, और फिर ये आ गया यहाँ पे वाइस टू टू से मुझे वन लेना है, तो टू से एक्स वन लेना है, तो टू से एक्स वन में नहीं जा सकता हूँ, थ्री से ए टू जाना है, जेड थ्री से ए टू जा सकता हूँ, ओनली टू इज टू। एक्स से पी जाना है तो एक्स से डायरेक्ट पी जा सकता हूँ, सही है, क्यू से एक्स जाना है तो क्यू से एक्स नहीं जा सकता हूँ, ओनली वन टू। एम से बी जाना, एम से बी कैसे जाऊंगा, एम से बी, तो एम से बी ग्रेटर देन इक्वल टू सही है, ई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड नहीं सही है, ओनली वन फॉलोस। 7 फ्रेंड्स हैं और उनकी अलग अलग हाइट है, इसको भी मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर वन क्या था, 9 मेंबर्स इन फैमिली, करेंगे बिल्कुल करेंगे। ये हो गया है, 6 पर्सन हैं, 1991 है, इससे पहले ये लास्ट वाली पजल आसान लग रही थी। हम्म, चलो इसको करते हैं, पर क्या करें, 8 डिफरेंट बॉक्सेस केप्ट वन ओवर द अनदर, ईच बॉक्स हैज डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट। तो 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7। There are two chocolate kept between Dairy Milk and Kit Kat. तो डेयरी से दो छोड़कर किट कैट है, डेयरी वॉज अबव किट कैट, डेयरी वॉज अबव किट कैट, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस वर केप्ट बिटवीन किट कैट बिलो किट कैट, किट कैट के नीचे मिनिमम 2 बॉक्सेस हैं करके, नंबर बॉक्सेस केप्ट बिलो मिल्की was equal to the number of boxes above Park. Park was above Milky Bar. Above Park was above Milky Bar. Okay. James was not kept in the lowest. यहाँ पर जेम्स नहीं आएंगे. Park was immediately above Bournville. Park was immediately above Bournville. Sneakers was immediately above the bar one. The Sneakers जो है वो immediately above bar. Bar के immediately above Sneakers. Park was not kept in the top. Park जो है वो top पे नहीं है. ओके, क्या करें, किटकैट के नीचे मिनिमम 2 लोग हैं और किटकैट के ऊपर तो एक दो, यहाँ किटकैट करते हैं और किटकैट के एक दो छोड़कर यहाँ डेयरी करते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, या फिर एक पॉसिबिलिटी इसमें खेलते हैं फिर डेयरी, डेयरी से एक दो छोड़कर यहाँ किटकैट होना चाहिए, या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डेयरी है, दो छोड़कर यहाँ किटकैट आ जाए। ये पूरी कंडीशन हमारी हो गई, फिर क्या कह रहा है कि मिल्की और पर्क का पेयर बनेगा, पर्क यहाँ नहीं आएगा और मिल्की के ऊपर पर्क आएगा, मिल्की पर्क यहाँ आ सकते हैं, मिल्की और पर्क यहाँ आ सकते हैं, यहाँ बन सकता था, यहाँ बन सकता था, एक बार करके देखते हैं। अगर मैं मिल्की को यहाँ करूंगा, पर्क को यहाँ करूंगा, पर्क के नीचे बॉर्नवेल नहीं आएगा, मिल्की यहाँ पर्क है, नहीं हो पाएगा, मिल्की पर्क, मिल्की पर्क, मिल्की पर्क, मिल्की पर्क, ये कंडीशन ही गलत हो गई। इसको देखेंगे तो मिल्की पर्क यहाँ सकता था, मिल्की और पर्क यहाँ सकता है, मिल्की पर्क यहाँ सकता था, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मिल्की, यहाँ हो जाएगा पर्क, यहाँ हो जाएगा बॉर्नवेल, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। बॉर्न की मिल्की बार, अभी अगर बार के इमीडिएट ऊपर स्नीकर आएगा लेकिन फिर जैम यहाँ आ जाएगा, कंडीशन गलत हो गई, यही कंडीशन सही है इसमें, मिल्की पार्क, मिल्की पार्क ये सही है, यहाँ कर लो मिल्की, यहाँ कर लो पर्क, यहाँ कर लो बॉर्न, उसके बाद क्या कर लो यहाँ बार, यहाँ स्पीकर, यहाँ जैम, टॉप पे कौन है, जेम्स, क्या बिटवीन स्पीकर किटकैट, स्पीकर किटकैट के बीच में एक आदमी, बॉक्स कैप बिटवीन पर्क एंड बार, पर्क और बार के बीच में कितने, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं, चॉकलेट कैप इमीडिएटली तो स्नीकर, स्नीकर के इमीडिएट और मिल्की बार, हाउ मेनी बॉक्सेस कैप बिलो स्नीकर, स्नीकर के नीचे एक बॉक्स, उसके बाद एट पीपल सिटिंग इन लीनियर रो,
ओके। और नीचे एक पजल थी, शायद ये थी 8 पीपल सेटेड इन नियर प्लेसिंग नोट। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिनियर रो में बैठे, ओनली 1% सेटेड was seated to one side of P. Only 1% was seated to one side of P. 3 people chosen P से 3 छोड़कर E है। Okay, and select second right of E, E के second right of N, 3 people between N और H, N से 3 छोड़कर H, D seated right of H, H के right में D, but not adjacent to E or N। C is seated right of L के right में C, C who is seated right of L, seated to the left of U। Okay, इसने ये वर्ड बोला कि ओनली 1% वो सिलेक्ट टू द वन साइड ऑफ पी। पी के एक साइड में केवल एक ही आदमी है। हो सकता है ऐसा हो, 1 2 3 छोड़कर अगर मैं ई यहाँ पर हूँ, ई के सेकंड राइट में एन, एन से 1 2 छोड़कर एच यहाँ पर सकता हूँ, एच के राइट में डी, ई के बगल में नहीं आए, तो डी कहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है। एल के राइट में, सी के राइट में ये डी एन के बगल में भी नहीं आया, तो डी एन है, तो एल के राइट में, सी के राइट में ये। Who is seated immediate left of E? Who के immediate left में n आ जाएगा। है एक ही क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन रहा होगा, ये सारे हो गए ना। ये क्या है, certain number of persons sitting in a circular table facing left right, P sitting third right of Q, Q के first second third right में P आ जाएगा, P sitting third right of P, 3% between P से 3 छोड़कर L आ जाएगा, L is to the right of P, L जो है वो P के राइट में है, G is immediate left of L के immediate left में G, R is sitting fourth right of G, G के first second third fourth right में R. Number of persons sitting between R and L when counted from the left of R is one less than the number of persons sitting between R and Q when counted from the right of OK। तो ये तो फ्लैट डॉट में फिर से कर रहे हो, टू के क्रॉस सेकंड थर्ड राइट में बी से टू छोटे कर लेते हैं, तो टू से एक, टू से क्यू से 1 2 3 छोड़कर पी से 1 2 3 छोड़कर एन, टू से 1 2 ये नहीं होगा यहाँ पे स्पार्टा। एल के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ जी हो जाएगा, जी से जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़कर यहाँ आर हो जाएगा, आर और एल में जितने लोग हैं, दो हैं जब लेफ्ट में, आर और क्यू में भी दो होंगे, एक कम होगा, आर से एक छोड़कर क्यू ये हो जाएगा, अब पी के राइट में एल आएगा, ये हो जाएगा, ये इतने लोग होंगे। 1 2 3 कह रहा हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एल और क्यू एंड फ्रॉम राइट ऑफ एल, 1 2 3 4, 4 लोग होते हैं। वो सेटिंग फोर्थ राइट ऑफ आर, आर के फोर्थ राइट में, सर्कुलर टेबल है क्या, शिट यार, गड़बड़ हो गया। With information, certain number of person are sitting in a circular table facing outward, P sitting third to the right of Q. Certain number of people are sitting on a circular table facing outward, P sitting third right of Q. 3 person sitting between P and L. L is to the right of P. G is immediate left of L. R is fourth right of G. ये भी ठीक ही है यार, अगर मैं ऐसे बनाया हूँ तो। Who is fourth right, fourth left of R के fourth में, first second third fourth left में G आना चाहिए मुझे लगता है। True. Q is sitting immediate left of G. L sitting second right of P. 3% Q and R. R is related to L. P is related to Q. G is related to P. How many processes sitting between R and G content right of R? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग आ रहे हैं यहाँ, गड़बड़ हो गए।
क्वेश्चन सॉल्व होगा ये होगा ABCD is born in the different consecutive years starting from 1990. Which person was born in the different city? 1991, 92, 93, 94, 95. कितने लोग हैं? छह. एक दो तीन चार पाँच छह. तीन चार पाँच छह. Each person was born in a different city. A was born in a prime number year, and A is younger to the Ottawa born individual. A prime year. A was younger. A was younger. Younger है मतलब कम उम्र है ना इसकी. बाद में पैदा हुआ. A was younger. Ottawa. One person was born between A and the Ottawa. A से एक पर्सन छोटा ओटावा है. The one who was born Quebec में बगल में ओटावा के बगल में क्यूबेक. तो ओटावा के बगल में क्यूबेक. More than 2% born between F and the Quebec. F और क्यूबेक के बीच में more than 2% है. One was born in the Victoria is younger than F. विक्टोरिया वाला कम उम्र का है F से. E and C who was born in Regina. E and C who was born E and C was born within one consecutive year. E के बगल में C. C Regina. One born in Calgary is immediately older to D. D के immediate ऊपर Calgary. प्राइम नंबर ईयर में कौन सा है? कौन सा प्राइम नंबर ईयर है? 95 नहीं है, 94 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, 92 भी नहीं है, 91 है. 13 7 91. प्राइम नंबर ईयर कहाँ है यार? कंसेक्यूटिव 13 7 है. 13 7 91 होता है. तो 91 प्राइम कौन सा? 92 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, 94 भी नहीं है, 95 भी नहीं है. A was born in a prime numbered year in different consecutive years starting from 1990. 1991. 13 13 13 13 6 13. ये हो सकता है ये. ए करूंगे तो उस एक छोड़कर ये 1992 1993. 9 3 12 8 20 1 21 1 22 ये भी हो सकता है. 94 95 तो डेफिनेटली नहीं होगा. इसको करके देखते हैं. ए से एक छोड़कर यहाँ पे उठा रहा है. ओटावा के बगल में क्यूबेक. क्यूबेक क्यूबेक और एफ में दो से ज्यादा. क्यूबेक एक दो तीन हो सकता है. एफ यहाँ आ सकता है. डी के इमीडिएट ऊपर ई के बगल में सी आएगा. सी रजीना. और डी के इमीडिएट ऊपर कैलगरी. डी के इमीडिएट ऊपर कैलगरी. उसके बाद ये कह रहा है ई के बगल में सी रजीना. ई के बगल में सी रजीना. एफ के ऊपर एफ के नीचे विक्टर. who was born in Barrie. A was born in Barrie. Who among the following was born in even numbered year? 92 और 94 में? Regina Calgary. C और F Calgary. Both B and E. B तो नहीं था यार. करेक्ट कर. 1990 में E है क्या? नहीं. 95 में 92 में B है क्या? नहीं. 91 में E है क्या? बिल्कुल. 94 में C है क्या? All the person born in a particular trust starting from 1990. A was who was born in Calgary. A B C D E. E was born in Calgary. अच्छा. अब क्या कर सकते हैं? कैटेगरी वाला एक क्वेश्चन था ना वो. कैटेगरी हाउ मेनी एस लेटर वर्ड्स इन द कैटेगरी? तो CATEGONI. CDEFG HIJ ABCDEFG TUVWX THIGHIJOPQRYYZ ABCDEFRSTUVWXOPQRSTGHIJK EFGHTA
एक आ रहा है यार इसमें तो। एक सेकेंड थर्ड इसमें तो रियल बन रहा था एक। और क्या बन सकते हैं? एक बन रहा था, एक तो बन ही रहा था। रियल और कुछ बन सकते थे हम। 66 राइट, 8 रॉन्ग। वही जहाँ पे उसको 64 इज द स्कोर। मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं है परसेंटाइल। परसेंटाइल नहीं आती इसमें, ये प्रॉब्लम है। बहुत आसान पेपर था ये। बहुत आसान है। इसमें कम से कम सब 75-80 नंबर आने चाहिए थे, कम से कम। कहाँ गलती हुई है वो चेक करते हैं। पक्का सारी पजल गलत है क्योंकि पैटर्न ही एकदम गलत था इन पजल्स में। किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में तो एक ही क्वेश्चन था एक पजल में तो। 12,304 रैंक इन 50,000, दैट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड स्कोर। 91 टॉप स्कोर रहा है इसमें। वी कैन easily score very good marks in this. एक तो बहुत फोकस होकर पेपर नहीं दे रहे थे ये। मुझे ये रिकॉर्ड रॉन्ग कौन से में है? Which of the following should replace? इंग्लिश गलत हो गई। अनअटेम्प्टेड कौन से थे? ऐसे सॉल्यूशन होते हैं इसमें यार। इससे बढ़िया तो टेस्ट बुक है। क्वांट में 22 अटेम्प्ट किए थे। 30 अटेम्प्ट होने चाहिए क्वांट में कम से कम। इतना आसान था ये। 16,000 बताओ। 67.3%, 45% percentile in maths. Definitely not, but overall 75.5%. Very unsatisfied with test. We can easily score very good marks in this test. हटाओ यार, एक और नहीं है। That's it for today. Thank you guys.